کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی مذہب کو نہ ماننے والا آپریشن روم کے اندر سے جب باہر آ گیا تو اس کا دل بدل چکا تھا اور اس کا دل اللہ ایک ہے ہونے کی گواہی دے رہا تھا؟ میرے ساتھ رکیے اور اس حیرت انگیز داستان کو جانیے۔ یہ صرف ایک میڈیکل سٹوری نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے عقیدہ، زندگی، موت اور معجزے کی، جو کوئی سائنس کی کتاب کبھی بھی سمجھا نہیں سکتی اور بتا نہیں سکتی۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی اپنے آنکھوں سے کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو کیا آپ مانتے ہیں یا اسے جھٹلائیں گے؟ آپ کے جواب کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا۔ کرپیا اپنے جواب کو لکھیے۔ یہ سٹوری ہے ایک ڈاکٹر کی جو ایک ہائیلی ریسپیکٹڈ سرجن ہیں اور بہت ہی بریلینٹ، بہت ہی عمدہ ڈاکٹر ہے، اپنے پروفیشن میں بہت ہی اعلیٰ ڈاکٹر ہے اور اتنا ہی ضدی بھی ہے۔ یہ ڈاکٹر ایک کرسچن فیملی میں پیدا ہوا، پر وہ کبھی بھی کرسچینٹی کو نہیں مانتا تھا، یعنی کہ وہ کبھی بھی پریکٹسنگ کرسچن ہی نہیں تھا۔ جب وہ ڈاکٹر اپنا ہوش سنبھالا تو وہ سائنس کو ہی اپنا ریلیجن سمجھتا تھا، سائنس کو ہی اپنا مذہب سمجھتا تھا، صرف اس کے لیے سائنس اور میڈیسن ہی سب کچھ تھا۔ وہ کبھی بھی کسی مذہب کو ماننے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو اوزار ہیں اور آپریشن روم میں جو مشینز ہیں اور جو سائنس کے کتابیں ہیں وہی اس کا عقیدہ ہے۔ وہ جب بھی عقیدے کی یا مذہب کی یا خدا کی اگر کوئی اس کے سامنے بات کرتا تو وہ اپنا سر ہلا دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ موت کے ڈر سے اپنے اپنے عقیدے اور مذہب چنتے ہیں اور مانتے ہیں، اور صرف میڈیسن اور سائنس ہی ماننے کے لائق ہے۔ یہ اکثر اپنے دوستوں اور اپنے ڈاکٹر ساتھیوں کے ساتھ یہ کہتا رہتا تھا۔ اس کے ساتھیوں کو لگتا تھا کہ یہ اندر سے بہت اکیلا اور خالی انسان ہے اور اس کا دل پتھر کی طرح بہت سخت ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ بدلنے والا تھا کچھ ہی دور میں، کچھ ہی دن میں اور کچھ ہی پل میں۔ ایک رات بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہائی وے پر۔ ایک کار کئی بار پلٹی ہو کر گر گئی۔ اس کے اندر ایک انسان تھا جس کا نام تھا یوسف، اور وہ بہت ہی سیریس تھا۔ یوسف ایک مومن تھا جو پریکٹسنگ مسلم تھا، یعنی وہ پکا ہمارے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی تھا۔ روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، ایک اچھا سچا مومن اور اسلام کو ماننے والا انسان تھا۔ یوسف کو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کی اتڑیاں تک باہر آ چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یوسف کبھی بھی کسی بھی حالت میں بچ نہیں پائے گا۔ خیر، یوسف کو بہت ہی جلدی ایمرجنسی وارڈ میں ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر نرس چلانے لگی کہ یہ کیس صرف ایک ہی ڈاکٹر ہینڈل کر سکتے ہیں، کرپیا کر کے ان کو بلائے اور بلائے، وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آیا، ہمیشہ کی طرح وہ بہت ہی شانت تھا، کسی طرح کی کسی پریشانی اس کے ماتھے پہ نہیں تھی۔ اسے اپنے ہنر پر، اپنی کامیابی پر، اپنی سائنس پہ بہت غرور اور اعتبار تھا۔ یوسف کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا اور اسے بستر پہ سلایا گیا۔ یوسف کو کچھ بھی ہوش نہیں تھی، وہ مگن تھا۔ جب ڈاکٹر آیا تو وہ اپنی تیاری کرنے لگا، اپنے ہینڈ گلوز پہننے لگا، سب بھی تیاری کرنے لگا، تو تبھی نرس کی نگاہیں یوسف کے ہونٹوں پر گئی۔ اس کے ہونٹیں کچھ پڑ رہی تھی، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نرس نے اپنے کان یوسف کے ہونٹوں کی طرف لے جا کے سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے۔ اس نے جو سنا وہ سن کے نرس کے پیروں کے تلے زمین ہٹ گئی۔ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے جا رہا تھا اور پڑھتے جا رہا تھا۔ اس بات کو نرس نے ڈاکٹر کو جب کہا تو ڈاکٹر
बहुत ही गुस्सा हो गया नर्स के ऊपर और कहने लगा कि तुम सिर्फ पेशेंट के ऊपर कंसंट्रेट करो और फोकस करो, क्योंकि सिर्फ हम ही उसे बचा सकते हैं और हमारी दवाइयाँ, हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी ही उसका इलाज कर सकती है और उसको बचा सकती है, ना कि वो जो पढ़ रहा है वो उसको बचा सकता है। ये कुछ ही देर में सब कुछ उल्टा होने वाला था और ये पता नहीं था डॉक्टर को भी कि आगे क्या होने वाला है। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया तो यूसुफ की बॉडी हार मान चुकी थी। उसका दिल रुक रहा था, एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसका दिल रुक चुका था और वो फिर होश में आ जाता और वो फिर से कलमा तैयबा यानी शहादत का कलमा पढ़ने लगता। नर्स फिर देखती, वो फिर डॉक्टर को बोलती, डॉक्टर फिर उसको वही हिदायत देता कि वो पेशेंट के ऊपर ध्यान दे, ना कि वो क्या पढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान दे, सिर्फ हमारा साइंस ही इसे बचा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर भी अंदर से हिल चुका था, क्योंकि जब भी यूसुफ की दिल की धड़कनें रुक जाती, मशीनों पर स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन आ जाती, बीप का साउंड आ जाता, उसकी सांसें थम जाती, उसका दिल धड़कना थम जाता। ये देख के वो समझते थे कि अब ये मर चुका है, लेकिन फिर ही कुछ ही सेकंड्स में उसके अंदर फिर से जान आ जाती और फिर वो कलमा तैयबा दोहराना शुरू कर देता। ऐसा ही करीब 3 बार होते गया। डॉक्टर देख के ये अंदर से हिल चुका था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जब तीसरी बार ये हुआ, जब वो फिर से कलमा तैयबा पढ़ने लगा और अचानक बीप साउंड फिर से आना शुरू हो गई, यानी उसकी दिल की धड़कनें फिर से रुकनी शुरू हो गई। जब यूसुफ के चेहरे पे हंसी आ गई, वो उसका चेहरा खिल उठा। ये देख के डॉक्टर भौचक्का हो गया कि एक इंसान मौत के दहलीज पे है, वो मरने वाला है, वो किस तरह से हंस सकता है, वो किस तरह से इतने आसानी से शांत रह सकता है, वो किस तरह से कुछ पढ़ सकता है। ये देख के डॉक्टर भी बिल्कुल हिल चुका था। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर की पैरों की ज़मीन हिल चुकी थी। वो उसके आँखों से यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतना कैसे शांत हो सकता है। वो मर रहा है लेकिन वो हंस रहा है, ये उसके समझ के बाहर था। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और यूसुफ की सांसें फिर से आ गई और उसका दिल धड़कने लगा और वो बेहतरी की तरफ उसकी तबीयत चलने लगी। ये देख के डॉक्टर बहुत ही हैरान हो गया। सभी लोग बाहर आ गए ऑपरेशन थिएटर से। जब उसके फैमिली वाले या उसके परिवार वाले बाहर थे तो डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे करके उसकी रिकवरी होगी और वो आराम हो जाएगा कुछ दिनों में। जाते जाते अस्पताल के कॉरिडोर से वो सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। मैंने आज तक कभी किसी धर्म को माना नहीं, किसी मज़हब को माना नहीं, लेकिन आज ये क्या हो रहा है। आज तक जो मैंने पढ़ा, जो मेरी साइंस ने कहा, जो मेरे किताबों में देखा, वो सब कुछ एक तरफ और आज जो हुआ वो एक तरफ। वो एकदम से अंदर से हिल चुका था। उसके अंदर इतनी क्यूरोसिटी पैदा हो चुकी थी, वो जानना चाहता था कि ये कैसे हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो ये जानना चाहता था यूसुफ से कि वो मौत के दहलीज पे रह के वो हंस कैसे रहा था, उसके पास मुस्कान कहाँ से आई, वो इतना शांत कैसे था, वो हंस क्यों रहा था। ये उसको इतनी क्यूरोसिटी हो रही थी कि उसने एक डिसीजन लिया कि जब यूसुफ की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो वो उसके साथ बात करेगा इस बारे में। अगले दिन जब डॉक्टर अस्पताल आया तो वो मरीजों का जायज़ा लेने लगा। तभी उसे यूसुफ का ख्याल आया और वो यूसुफ के पास गया। वो जाके देखता है कि यूसुफ की तबीयत बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से सुधर रही है, सुधार हो रही है। उसको ये भी बहुत ही अजीब लगा और ज़्यादा बहुत चक्का हो गया कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो के इसकी हड्डियां टूट गई, इसकी पसलियां टूट गई, इसकी अतड़ियां तक डैमेज हो गई। इसको 3 बार 4 बार इसका दिल रुक गया, फिर भी इतनी तेज़ी से कैसा रिकवरी हो रही है इसकी, किस तरह से इसकी तबीयत सुधर रही है। इसके दिल में और ज़्यादा क्यूरोसिटी पैदा हो गई कि अब मैं ये जान के ही रहूँगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। उतने ही पल में उसके घर वाले बाहर खड़े हुए थे। ये जाके बोला उसकी रिकवरी थोड़ा तेज़ी हो रही है। अब पहली बार अपनी
पूरी लाइफ में वो उसके घर वालों से कहा कि आप दुआ कीजिए यूसुफ के लिए, ये इसकी दिल में तब्दीली आ चुकी थी, ये इस्लाम को थोड़ा थोड़ा मानने लग रहा था, ये अल्लाह के तरफ खिंचे चले आ रहा था, दीन के तरफ खिंचे चले आ रहा था। इसके अंदर क्यूरोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि इसका दिल रह नहीं रहा था कि वो कब यूसुफ से पूछे इसके जो सवालात हैं। जब यूसुफ को बहुत ही आराम लगने लगा, वो उठ चल फिरने लगा, तो जब डॉक्टर आया और आके उसे पूछने लगा कि तुम तो मौत की दहलीज पे थे, तो तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम ये क्यों कह रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम्हारे चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों थी, यहाँ तक कि तुम्हारा दिल रुक चुका था, फिर से तुम्हारा दिल धड़कने लगा, फिर तुम्हारा दिल रुक चुका था, फिर से धड़कने लगा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या माजरा है। जब यूसुफ ने कहा अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, मैं इसकी गवाही देता हूँ, ये है कलमे की मानी, और एक दिन हम सबको अल्लाह के पास ही तो जाना है, तो फिर डर कैसा। हमें तो खुशी होना चाहिए कि हम अपने नबी को देख सकेंगे खबर में, हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे, और जो हमारे आमाल अगर अच्छे होंगे तो हम जन्नत में जा सकेंगे। हम बने ही हैं मिट्टी से, हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे, हमें बना ही है अल्लाह ने हो रहा हूँ, और हम अल्लाह के पास ही जाएंगे। हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक मौका दिया उसकी इबादत करने के लिए। हम इससे ज़्यादा खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मत बनाया जो नबियों का नबी है, जो कि तमाम अंबिया और नबी रश करते थे कि हम इस नबी के उम्मत हो सके। ये हमारी खुश किस्मती है कि हम इस नबी की उम्मत हैं। ये सब सुन के यूसुफ और उसके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा था। कुछ समय बाद वो फिर से यूसुफ के कमरे में आया और आके कहा, भाई मुझे आप कलमा पढ़ा दो या कुछ ऐसा कर दो कि मैं भी मुसलमान हो जाऊं। मैं हद से ज़्यादा आपके दीन को जानना चाहता हूं, मैं इस्लाम को जानना चाहता हूं, मैं आपके नबी को जानना चाहता हूं। ये सिर्फ़ एक करिश्मा ही था, एक मोजज़ा ही था जो एक डॉक्टर, किसी मज़हब को ना मानने वाला, कभी किसी मज़हब के बारे में सुनने तक नहीं था, उस डॉक्टर की इतनी तब्दीली हो चुकी थी कि वो मुसलमान होने के लिए तैयार था। तभी यूसुफ ने डॉक्टर को कलमा पढ़ाया और उसे मुसलमान बनाया और उसका नाम अहमद करके रख दिया। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। कुछ इसी तरह के ईमान वाले वाक़ियात, कहानियाँ हम आपके पास लाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।